Good evening, sir. Welcome to Bollywood Live. So first up, tell us a little bit about Sniff. How did the project happen? Actually क्या हुआ, there was no suddenly one man walked into my life called Ajit Thakur from Eros Trinity Pictures, and he said कि सर मैं कुछ young writers को लेके आ रहा हूँ, you won't mind? I said क्यों भाई? तो नहीं क्योंकि आपका समय मूल्यवान है वगैरह। ऐसा नहीं, मेरा समय कोई मूल्यवान नहीं है। इंस्टेंट में एक काम करता हूँ, मैं बिरयानी मंगा लेता हूँ ताकि बातचीत के बाद थोड़ा खाना पीना भी हो जाए। तो ये इस तरह से स्निफ स्टार्टेड। एंड स्निफ ऑफ कोर्स इट वाज नॉट कॉल्ड स्निफ देन, इट वाज नॉट कॉल्ड एनीथिंग, इट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। सो द स्टोरी कॉन्सेप्ट एक नहीं, about 4 of them were narrated to me by 4 young writers. But the resolution was not there it was just concept level. But at a story idea level, I liked this Radhika Anand's concept the most. तो ऐसे ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो अजीत ठाकुर से दिन अच्छा लग रहा है तो रख लीजिए। तो ऐसे हाँ रख लेता हूँ। Then let me write it to a finish. In the meantime, Radhika went and got married and had a lot of fun. And I also had a lot of fun putting this into a shooting script form. Stories, screenplay, dialogues, lyrics. And once I finished it, एक सीटी मार के I told Ajit के हो गया भाई हलवा। He came, heard it, and I got a good response from him. He said, सर अभी आपको क्या करना है, आपको ईरोस के ऑफिस में आना है और नरेट करना है, तो I said, वाओ। तो मुझे लगा 4-6 लोग बैठेंगे, 45 people were there in the narration, एक बड़े हॉल में in their big boardroom. I said, my God, इतने लोग आए क्या सुनने को? तो ऐसे चलो फिर थोड़ा अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। तो I narrated the script and it's on since then. And what made you zero down on Khushmeet? I don't zero on anybody. They zero on me. मैं तो I don't do any audition or nothing. तो मैं तो workshop करता हूँ. And after doing my workshop, I find कि जो खींचा हुआ आएगा वो आ जाएगा खींचा हुआ. So in a sense, this is how I've got. And your son was brilliant in Stanley Ka Dabba and Hawa Hawa. Why didn't you think about him when it come to this film? मेरे से बड़ी हाइट हो गई उसकी। अब वो बच्चा नहीं रहा। अब तो उससे मैं कुछ और करवाऊंगा। मतलब एक तो he should do his पढ़ाई and he's never lost a single day both in Hawa Hawaii and in Stanley Ka Dabba. तो अब तो 11वीं में आ गए हैं मास्टर जी। He's in 11th standard. Okay. He's a published poet in English in the Queensland, in England, in the Trinity books, in Canadian poet societies. He's a poet, and he writes his songs. He composes. He's a guitarist, a left-handed guitarist. तो गाने compose करता है, गाता है, and फिल्में बनाता है. So हो गया, वो तो तैयार है, उससे क्या मैं करवाऊंगा? वो ही बोलेगा, Dad, I want to cast you in my film. Return gift. And sir, whenever in India, we make a movie for kids, it tend to goes a little overboard. But you're the only one who has sort of, done justice to this genre. So, what do you think? Where do you think we are lacking behind in terms of as compared to our foreign counterparts? What a lovely question to ask, because I've been always wanting to bring it to the notice of the nation that बच्चे जो है ना हमारे ही होते हैं। चिल्ड्रंस फिल्म या किड्स फिल्म जो बोलते हैं, किड, आई हेट द वर्ड किड, क्योंकि क्या है, चिल्ड्रन में 7 लेटर्स रहेंगे, इसमें खाली 4 रहेंगे। 3-4 लेटर से इतना उनका एस्टीम का वो करते हैं, बिकॉज देन यू किड देम, देन यू किड आउट, तो किड हो जाता है, मतलब चाइल्ड होता है, बिकॉज चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो ट्रूथ बी सेड कि यहाँ हम लोग बच्चों को बचकाने के साथ मिक्सअप करते हैं।
दैट्स नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट टू हैव इन योर हेड. हम लोग बच्चों को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते. दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो हम लोग जब भी अटेम्प्ट करते हैं कुछ, तो बच्चे के लिए ना, तो कुछ थोड़ा सा फिसलो, गिरो, हा करो, तो ये बच्चा हो गया. ये हम लोग का डेफिनेशन है बच्चे का. जबकि आप अपने बचपन में झांक के देखिए कि सेकंड स्टैंडर्ड में कितने तेज थे, क्या क्या सोचते थे. हमको लगता है कि वो क्या सोचेगा, जबकि खुद सोचते थे जब बच्चे थे. वी फॉरगेट आवर ओन चाइल्डहुड, सो वी डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट चिल्ड्रन. तो वही होगा. बाहर के देश का कोई यूरोपियन होगा, वो नहीं करता. वो रिस्पेक्ट करता है अपने चाइल्ड कम्युनिटी को. इसीलिए जब चिल्ड्रंस फिल्म बनाते हैं वो, देयर इज अ बिगर फुटफॉल, अ बिगर eyeball basket than perhaps adult material films. ये सच बात है. पर अपने इधर इतना अच्छा आई एम कलाम बनी है, कितनी अच्छी फिल्में बनी, लोग लेके नहीं जाते अपने बच्चों को. अभी उसका एजुकेशन क्या करेंगे? वो यूए में घुस जाएंगे, किधर कोई जोक्स वोक्स ये वो आइटम नंबर दिखा देंगे पॉपकॉर्न खिला के. पर अच्छी अगर कोई फिल्म चल रही है तो लेके नहीं जाएंगे. दैट्स आवर प्रॉब्लम. And so last we saw you in Singham Returns, in the very creepy Baba role. So next, in which movie do we see you acting? I'm not acting right now because I feel that जब free time होता है तो कर लेते हैं. But right now I'm in a situation where I want to give every single moment to Sniff. I owe it to the children. 50 बच्चे हैं साथ में मेरे, सिर्फ खुशमीत नहीं है. सो इमेजिन के वो हम लोग सैटरडे संडे करते करते, अभी मैं किसी डायरेक्टर को तो बोल नहीं सकता ना कि भाई मंडे टू फ्राइडे मुझे शूट करो, सैटरडे संडे तो बच्चों के साथ हूँ मैं. वो बोलेंगे नहीं भाई 15 दिन का शेड्यूल है, लंदन जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है. आई कांट पार्टिसिपेट लाइक दिस बाय गिविंग अवे डेज, क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत करने को है. दैट्स व्हाई. तो एज एन एक्टर ये है कि मूड आया कर लिया, अपनी पिक्चर में करूँगा, ऐसा क्या है.